Good morning students. How are you? A very warm welcome to today's class. क्या हाल है आपके? I hope you all are good. So now returning back to the studies, in today's class we are going to start with a very interesting new poem, that is When I Set Out for Lyonnesse. ठीक है? When I Set Out for Lyonnesse. Lyonnesse is the name of a place. A young apprentice architect. Now, before we read the text or understand the text of the poem, firstly, we should see some, we can say, a concept that is given. Before we start with the text, we should go through it and understand it. It is going to help us in understanding the poem in a much better way. So, as a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which poet called Leonis. Now see, यहाँ पे ये कहा जा रहा है that as a young apprentice architect, एक ब्रिटिश पोएट और नॉवलिस्ट जिनका नाम है थॉमस हार्डी, he once visited a parish just to supervise the restoration of a church. And जब वो पैरिश से वापस आए ना, people noticed two things about him. एक तो उनकी आंखों के अंदर जो न्यू ग्लो था, एंड सेकेंड crumpled piece of paper जो स्टिक आउट कर रहा था ऑफ हिज कोट पॉकेट. ये जो पेपर है ये रिकॉर्डेड है इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. ठीक है, इसके अंदर कंटेन होता है, ये कंटेन करता है द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम. वो पोएम दैट यू आर गोइंग टू रीड, यही वो पोएम है, दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस, जो उनके एक प्लेस पे विजिट से इंस्पायर्ड है. और वो प्लेस क्या है? उस प्लेस को पोएट लियोनीज कहते हैं. Now, understood? So see, now firstly I am going to read aloud the text. When I set out for Lyonnesse, 100 miles away, the Rhine was on the spray, and starlight lit in my lonesomeness. When I set out for Lyonnesse, 100 miles away, what would be chance at Lyonnesse while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Lyonnesse while I should sojourn there? When I returned from Lyonnesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonnesse with magic in my eyes, by Thomas Hardy. Now see, now we are going to understand it paragraph by paragraph. So first paragraph, see, when I set out for Lyonnesse, 100 miles away, poet is saying, जब मैंने लियोनीज नाम की एक प्लेस के लिए मैंने अपना जो जर्नी थी उसको स्टार्ट किया, जो कि 100 माइल्स दूर था. ठीक है, द राइम वॉज ऑन द स्प्रे एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस. तो वहां पे क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, तो वो जो पत्ते थे उनकी जो ब्रांचेस थी उस पर पूरा बर्फ था, और जो नाइट थी वो पूरी स्टारलाइट थी, तारों से भरी हुई रात थी. ऑल जो ये जितनी भी चीजें थी ना, ऑल दीज थिंग्स, वो उनका जो लोनसमनेस थी ना, अकेलापन जो था, उसको लिटअप कर रही थी ऑन द जर्नी. कब? When I set out for Lyonnesse 100 miles away, जब मैंने लियोनीज के लिए अपनी जर्नी शुरू की, तब जो 100 माइल्स अवे थी, तब ये सब चीजें जो थी वो मेरे लोनसमनेस वाला जो पाथ था ना, उसको लिट करने का काम कर रही थी. मतलब जो मेरा एकांत का जो पथ था उसको वो प्रकाशित करने का काम कर रही थी. जब पोएट ने 100 माइल्स अवे की जो लियोनीज नाम की एक प्लेस थी उसकी जर्नी जब बिगिन की थी. सो विद दिस पैराग्राफ व्हाट एसेंस, हमें क्या समझने को हमें क्या मिलता है? वो ये मिलता है कि जब भी हम अपने एम की तरफ, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमारे मार्ग के अंदर सबसे पहले ऑन द वे हमें डिफिकल्टीज मिलती हैं, हमें बहुत कठिनाइयां मिलती हैं, आती हैं. तब लेकिन कोई ना कोई रोशनी, कोई ना कोई चांदनी भी आती है जो कि हमें प्रेरणा देती है, विच गिव्स अस लाइट इन दैट लोनसमनेस पाथ ऑफ आवर जर्नी.
Now see the second stanza. What would be chance at Leonie's while I should sojourn there? No prophet durst declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonie's while I should sojourn there? Now, he's saying, now, जब वो वहां पे से ही सेइंग कि जब मैं वहां रुकूंगा तब लेओनीज में क्या होगा, संयोगवश वहां पे क्या घटेगा, यही तो सोचने वाली बात है। क्या होगा उसके साथ में, व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज, मतलब उनके साथ क्या घटना घटेगी। कोई सोजॉन देयर, व्हाइल आई शुड सोजॉन देयर, जब मैं वहां पे स्टे लूंगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद मी। नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर, किसी भी प्रॉफिट ने आज तक इस चीज को डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं की है, ना ही वो कर पाया है। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, ना ही कोई बहुत ही जो बुद्धिमान जादूगर किस्म की व्यक्ति होती है, ना ही वो कभी अनुमान लगा पाए कि जब मैं वहां पे रुकूंगा, व्हेन आई विल हॉल्ट एट लियोनीज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वहां पे क्या घटित होगा, वहां पे मेरे साथ में क्या होगा। नो बडी इज एबल टू गेस, ना ही कोई प्रॉफिट गेस कर पाया, ना ही कोई वाइजेस्ट विजार्ड इस चीज को गेस कर पाया। दैट इज, ना ही कोई पैगंबर इस चीज को बता पाया, और ना ही कोई बुद्धिशाली जो जादूगर होते हैं, ना ही वो बता पाए व्हाट that what would be chance at Leonie's while I should sojourn there, कि जब मैं लियोनीज में रुकूंगा तो वहां पे मेरे साथ क्या होगा। सो इसका जो एक आउटपुट है, इससे जो हमें समझने को जो चीज मिल रही है फ्रॉम दिस, वो हमें क्या मिल रहा है, वो ये है कि हमें अपने कर्म करने हैं, हमें अपने काम करते चले जाना है, पर हमें हमारे साथ क्या होगा, हमें उस फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सो वी शुड कीप ऑन मूविंग विद आवर वर्क, वी शुड नॉट वरी अबाउट कि हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। ओके, नाउ सी, when I returned from Leonie's with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonie's with magic in my eyes, by Thomas Hardy. So, when I returned from Leonie's with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Leonie's with magic in my eyes. Now, यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब वो रिटर्न हुए ना, जब वो लियोनीज से वापस आए, देन व्हाट हैपेंड, जब वो लियोनीज से वापस आए, उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया मैजिक था। ठीक है, तब जो पीपल थे ना, वो बहुत ही, जो हम बोलते हैं, सरमाइज हो गए, वो बिल्कुल मूव हो गए, वो इस चीज को सोचने लग गए कि जब वो वहां से आए तो जो रेडियंस उनकी आंखों में था, जो चीज दुर्लभ थी और बहुत ही रेयर थी और बहुत ही फैथमलेस, दैट इज कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते थे, इस तरह का रेडियंस लेकर के वो अपनी आंखों में वापस आए। सो इससे इसकी वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या है। सो दे ऑल वर म्यूट सरमाइज एंड दे वर जस्ट थिंकिंग, वो अपना अनुमान लगा रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ रेडियंस, व्हाट काइंड ऑफ मैजिक इज दिस इन हिज आईज, व्हिच इज वेरी रेयर एंड वेरी फैथमलेस, व्हिच इज unmeasurable. So when I returned from Leonie's with magic in my eyes, और ये कब हुआ, जब वो मैजिक अपनी आंखों में लेकर वो लियोनीज से वापस आए। सो इट सेज कि इस पैराग्राफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट जब हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं ना, हमें सभी जो होते हैं दृष्टि से परिमार्जित कर देती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। जब आप किसी भी जर्नी पे जाते हो तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सक्सेसेस भी आते हैं, फेलियर सक्सेस एक कंबाइंड जर्नी होती है। सो आपकी आंखों में जो चमक होती है ना, वो सब कुछ बयां कर देती है, वो दृष्टि जो होती है वो सब कुछ परिमार्जित कर देती है, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नी यू हैव बीन, क्या खट्टे मीठे अनुभव हुए थे, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन योर जर्नी, फ्रॉम विच यू रिटर्न। तो ये जो ग्लो, जो एक न्यू मैजिक आपकी आंखों में होता है, विच इज वेरी रेयर एंड वी कैन से इट इज अनमेजरेबल, तो वो रेडियंस, वो मैजिक जो है वो सब कुछ बता देता है। So this is a very beautiful poem, very sensible, meaningful poem by Thomas Hardy. Okay, चलो गुड। सो नाउ नेक्स्ट, अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जस्ट गो थ्रू द पोएम, रीड इट वेल, आई होप इट्स वेल एक्सप्लेन्ड एंड आपको अच्छे से समझ में आई होगी। Yes students, so the explanation of the poem is complete. आपको poem अच्छे से explain कर दिए। Now what we are going to do, we are going to do this, we can say the textbook question answer working with the poem part of this poem. Okay, so see question number 1, पहला question क्या है, in the first stanza find words that show,
फर्स्ट स्टैंजा के अंदर आप ऐसे वर्ड्स ढूंढो जो इसका मीनिंग देते हैं. दैट इज फर्स्ट वन. देखो, दिस इज वेरी कोल्ड. ये बहुत ठंडा था ये. सो राइम. ठीक है. दिस इज, दैट इज व्हाट लेट इवनिंग. बिल्कुल लेट इवनिंग. लेट इवनिंग मीन्स स्टारलाइट. That the traveler was alone, so lonesomeness. So ये 3 words हैं जो हमें फर्स्ट स्टैंजा में से मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इन फ्रेजेस के लिए फिट होते हैं. दैट इज वेरी कोल्ड के लिए क्या है? राइम. दैट इज was late evening, starlight. That the traveler was alone, lonesomeness. Okay. Now see, something happened at Lyonnesse. It was, कुछ हुआ लियोनीज में. वो क्या हुआ? Improbable, impossible, unforeseeable. तो क्या हुआ? Answer is third one, that is unforeseeable. So something happened at Lyonnesse and it was what? It was unforeseeable. So see, answer that is third option, जिसको जो क्या है? Unforeseeable. ठीक है. Now see, pick out 2 lines from stanza 2 to justify your answer. अब ये जो आपने ऊपर जो है ना क्वेश्चन, इसके लिए आपको 2 लाइन्स पिकअप करनी है. कहां से? अपने स्टैंजा 2 में से, जिससे आपका आंसर जस्टिफाई होगा. सो सी, नो प्रॉफिट डज डिक्लेयर, nor did the wisest wizard guess what would be chance at Lyonnesse. ना कोई प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है, ना कोई वाइजेस्ट विजार्ड गेस कर सकता है कि क्या भी चांस होने वाला है लियोनीज. तो अंडरस्टूड है कि जो भी होगा वो अनफॉरसीनेबल है. नोबडी इज एबल टू सी इट. किसी को नहीं पता क्या होगा, कोई नहीं देख सकता. So no prophet does declare, nor did the wisest wizard guess what would be chance at Lyonnesse. So this is the stanza, which lines which are used to justify the answer. Read the line stanza 3 that implies the following. आप read करोगे इस लाइन को जो stanza 3 में है. that implies the following. देखो क्या बताती है ये. Everyone noticed something and they made guesses but didn't speak a word. So answer is, हर किसी ने नोटिस किया कुछ ना कुछ, and they made guesses. उन्होंने बहुत कुछ guess भी किया, but they didn't speak a word. but वो एक शब्द भी नहीं बोले. So the line from the stanza 3 जिसका ये implied meaning है, वो line क्या है? All marked with mute surmise. So all marked with mute surmise. तो ये line जो है ये it's giving the implied meaning of the above given lines. All marked with mute surmise. Okay, once again I am repeating. All marked with mute surmise. Square देखो, second वाला देखो. Now read the line that refers to what they noticed. अब वो लाइन रीड करो जो ये रेफर करे that what they noticed. उन्होंने क्या नोटिस किया. ठीक है. My radiance rare and fathomless. That my radiance, it was rare and fathomless. कि जो radiance था ना वो क्या था? It was rare and fathomless. Radiance rare मतलब बिल्कुल जो हम बोलते हैं different. Fathomless मतलब जो unmeasurable होता है. बिल्कुल different और unmeasurable. So it refers to what they notice is they notice that my radiance rare and fathomless. Okay, so answer of this sentence I am once again repeating it. My radiance rare and fathomless. So with this we can say कि जो हमारा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्ट था वो इसका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे. And with this your whole poem along with the exercise is completed. Go through it nicely, understand it well. और आप देखो कि इतना अच्छे से आपको वेल एक्सप्लेन्ड है एंड इजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. तो आप जब एक बार इसको रीड करोगे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट nicely. Okay, so this is all for today's class. We'll be meeting in our next class with something new, with a new topic. Till then, keep studying and take care of yourself.